Yeah. Okay, good evening all. Today we'll take up a previous year question paper. And before that, let's just quickly cover two, three barracks and the important sections of those barracks and public interest litigation. And after that, we can start with the previous year practice. So kindly start with writing those important sections or mark it in your barrack. First is Advocates Act. First is Advocates Act. For Advocates Act, it's a small bare act, 7 chapters only, but few of the sections are important. There are a number of sections that are important. I will tell you chapter wise. So start with chapter 2. Chapter 2 is important. Chapter in chapter 2, section number 3, 4, 6, 7, 7A, 9, 9A, 10B. 10B is important. Apart from marking it important, mark it important otherwise also. Then section 15. And in chapter 3, 17, 22, 24A, 28. Did you miss something? Do you want me to repeat chapter 73? Chapter 3, it's 17, 22, 24A, 24A, 28. In case my speed, you are not able to catch up with my speed, kindly write down in the sheet so that you can tally later. Chapter 4, 30. Section 30 is important. 30, 30. Then coming to chapter 5, 35, very important. 36, then further 36A, B, 37, 38, 42A, 49, 49. Yes, that is for Advocates Act. Let's come to public interest litigation. Uh, One of you only mentioned that you want to revise public interest litigation. I prepared a Word file also for public interest litigation. I'll discuss it in class and share the same with you also after the class. Um, Yeah, you have not received because I have not sent it to the coordinators. I told you yesterday's class also, PPT, I am updating on regular basis. So once all my updation is done, today I'll send it. Not only PPT and the Word file, and I have compiled few things from internet only. Not I'm not prepared, but I have got few short notes and everything. That also I will send. Okay. I'll show you what all I will be sending. So those things will I don't have there is no point in me keeping it. You people will get it. Don't worry about those things. Let me just show you about PIL and let's start with PIL. Okay, to begin with PIL अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन लेके आता है एंड इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सिंपल होंगे बट आपको दो तीन आर यू एबल टू सी द PIL वर्ड फाइल मार्क द थंब मार्क इफ यू कैन सी या चैट में मेंशन कर दीजिए इफ यू आर एबल टू सी इट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि क्या पॉइंट है ओके थैंक यू The session has just started. I have covered Advocates Act and now I am taking up public interest litigation. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई थर्ड पार्टी जो एक्चुअली पार्टीज नहीं है उस केस का वो पार्टी भी केस फाइल कर सकता है कि नहीं कर सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक कंसेप्ट है कंसेप्ट कॉल लोकस स्टैंडाई ठीक है देर इज अ कंसेप्ट कॉल दीज आर जस्ट 5 वर्ड्स आई गिव यू जो कि आपको इस 4 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अ टर्म लोकस स्टैंडाई LUCS CUS बाकी डिटेल नोट्स मैंने यहाँ पे 4 पेज का लिखा है बट वैसे आपको 4 वर्ड्स चाहिए लोकस स्टैंडाई लोकस स्टैंडाई बेसिकली मीन्स अ राइट टू स्टैंड बिफोर अ कोर्ट ठीक है पहले क्या होता था इनिशियली आपका खाली जो पार्टीज होते थे वो फाइल कर सकता था अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फाइल कर सकती थी
ठीक है, मेरे ना मेरा सिस्टर, नॉर माय सिस्टर, नॉट एनी एनजीओ, कोई और नहीं कर सकता था, मेरे को ही करना पड़ता था। तो अब वो कंसेप्ट चेंज होके अब लोकल स्टैंड आई को क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। अब कोई थर्ड पार्टी जिसको डायरेक्टली उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो प्रॉब्लम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो देर आर सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट पीआईएल फाइल करने के लिए। एक पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी अबाउट अ लार्जर पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, आपका कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट उससे केटर नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं। तो अगर आप फाइल कर सकते हो पीआईएल, कैसे फाइल कर सकते हो पीआईएल, आप एक नॉर्मल पेपर में एक लेटर भी लिख के अगर आप देते हो तो वैसा भी पीआईएल फाइल हो जाता है। तो पीआईएल बहुत ही इफेक्टिव टूल है जो कि विथ जुडिशियल इंटरवेंशन आया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसको। लोकल स्टैंडाई के को एक्सपैंड किया गया क्योंकि पहले खाली पार्टीज कर सकती थी, इसको एक्सपैंड करके अब ये इन्वॉल्व किया कि थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो डू। तो कैसे मैटर्स आपके लोकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाते हैं, पहले जाते थे खाली जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हुए केस जाता था जो कि बहुत पुअर है, ठीक है, जो खुद के लिए कुछ बोल ही नहीं पाते, वो अपना राइट्स उन्हें पता होगा तो वो मांगेंगे ना, वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए, पुअर मार्जिनलाइज लोगों को हेल्प करने के लिए स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद ये क्या, आज के डेट पे ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी बहुत सारा पीआईएल के थ्रू आप लेके जाते हो कोर्ट में। एंड ये कैसे जाता है, व्हाट इज द बेसिक आर्टिकल जिसके थ्रू ये जाता है। अच्छा, यू वांट मी टू जूम इन जस्ट अ सेकंड। पीआईएल किन किन मैटर्स में जाता है, बॉन्डेड लेबर, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन अ केस नेम, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट केस है ये पीआईएल का। मैंने बोला था ना 4 पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगी, पहला लोकल स्टैंड है, दूसरा हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में कि फर्स्ट केस ऑफ पीआईएल कौन सा है इंडिया में, तो वो हुसैनारा खातून है। केसेस और भी बहुत सारे आए हैं, वो केसेस मैंने नीचे कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। ये रहे सारे केसेस के नाम, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपका 4 नंबर यहीं रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके पीआईएल से रिलेटेड। फाइन। तो थर्ड पॉइंट में लिखो अदर केसेस, आपको अदर केसेस यहाँ से रीड करने हैं, अदर केसेस यहाँ से रीड करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पीआईएल का है प्रोविजंस, प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आपका पीआईएल जो है दो जगह पे फाइल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीआईएल फाइल नहीं होता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल, रेलेवेंट आर्टिकल भी मेंशन करो, 32 एंड 226, 32 एंड 226, दैट इज इट। ये इतना ही पॉइंट्स है जो आपको लास्ट में मैंने रिवाइज करना है, बाकी आपकी शीट पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। एडवोकेट्स एक्ट हो गया, पीआईएल हो गया। अब जल्दी से बीएनएस वगैरह कर लेते हैं, लिखते जाइए। सबसे पहले कर लेते हैं बीएसए, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो आया है, बीएसए, बीएसए 2023 की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, बीएसए की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। स्टार्ट करूं। सेक्शन 2, इंडेक्स खोल के मार्क करना। आप ऐसे पूरा बैरक खोलोगे तो आप मार्क नहीं कर पाओगे, इंडेक्स में ही मार्क कर लीजिएगा, मार्क इट इन द इंडेक्स ओनली। सेक्शन 2 पूरा, सेक्शन 2, सेक्शन 4, 6, 9, 9 के बाद 12, 15 टू 21 एडमिशन से रिलेटेड जो है, 15 टू 21, देन 22 एंड 23 कन्फेशन, 26 डाइंग डिक्लेरेशन, 39, 26, 39, 46 एंड 47, 46 एंड 47, 55, 55, 57, 58, 57, 58, 74, 92,
93, 93, देन आ जाओ 104, 104, 105, 104, 105 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ बताता है, 104, 105, देन 118 डाउरी डेथ, 118, 121 एस्टॉपल, देन 142, 143 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, देन 162, दैट इज इट, देन 162. नाउ कमिंग टू BNSS. BNSS ना बहुत ज्यादा बहुत लंबा है, उसको अभी रहने दो, मैं अपना रजिस्टर का शीट भेज दूंगी इम्पोर्टेंट सेक्शन लिखा हुआ, वो बहुत ज्यादा, वो आप आराम से बैठ के टिक करते रहना. अगला आ जाओ BNS में, BNS IPC के बदले जो आया है BNS, भारतीय न्याय, BNS, ओपन इंडेक्स खोल लिया. सेक्शन 1, सेक्शन 2 में सब क्लॉज 3, 10, 2 खैर पूरा ही पढ़ लीजिए पॉसिबल है तो. सेक्शन 3 में 5, 3 सबसेक्शन 5, देन 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. इनिशियल के बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट आपके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं आपको स्पेसिफिकली अभी बता दूंगी कौन कौन सा चैप्टर आप छोड़ ही सकते हो, मतलब उसपे से नाम मात्र क्वेश्चंस आएंगे. चैप्टर 3 में 14 to 24 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोड़े सेक्शन छोड़ के 34 to 44, 34 to 44. चैप्टर 4 में आ जाइए, चैप्टर 4 में 45, 46, देन थोड़ा छोड़ सकते हैं आप 61, 62, 61, 62, देन चैप्टर 5 में आ जाइए 62 to 60, 63 to 65, 63 to 65, 70, 74, 70, 70, 70 and 74, 75, 77, 78. ये सारे सेक्शंस ये वाले चैप्टर के आप पढ़ सको तो पढ़ लो, चैप्टर 4 पूरा ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. 97 तक सब इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 6 पे आ जाओ, 100 to 110 इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद ना 3 सेक्शंस है आपके, 111, 112 एंड 113. ये न्यू सेक्शंस है, न्यू कंसेप्ट है, तो इस पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है. ये पहले नहीं था ये कंसेप्ट, 111, 112 एंड 113. अब चैप्टर 7 में एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 152. आई एम सॉरी. चैप्टर 8, 9 छोड़ दीजिए, यू कैन लीव चैप्टर, कम टू चैप्टर 10 डायरेक्टली. 7 के बाद 10, 10 में खाली नाम, नाम चैप्टर का नाम क्या है बस इतना देख लो, समझ में आ गया, टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या है. सेक्शंस कुछ ऐसा ऐसा रीड करने की जरूरत नहीं है आपको. सेक्शन 11, सॉरी चैप्टर 11, चैप्टर 11, 189, 189, 191, 194. अब चैप्टर 14 पे आ जाइए, 11 के बाद 14 पे, 2 to 7, 2 to 9, चैप्टर 15 पे आ जाइए. जो चैप्टर है ऑफेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी ना, तो और बॉडी, इसमें जब चेंज होता है आपका ऑफेंस, वो स्टार्टिंग सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए. अगर मैं मिस आउट कर रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, जैसे हर्ट कहाँ पे है,
ग्रीवियस हर्ट कहाँ पे है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ पे है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कहाँ पे है, किडनैपिंग कहाँ पे। तो जो फर्स्ट सेक्शन है ना जिसमें बताया गया है ये है ऑफेंस, वो ध्यान रखना, ऑफेंस ऑफ बॉडी जब आप रिवाइज करो तो। ठीक है। सेक्शन जब बहुत सारे हो गए थे, अगर मैंने मिस आउट कर दिया तो इसलिए आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। बाकी चैप्टर का नाम और टाइटल पढ़ के जाना चैप्टर का। कहाँ तक कर लिया था, 15 तक? टिल where did I get you marked? 15, 14? कोई टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, लास्ट सेक्शन मैंने कौन सा बताया? कैन anyone tell me? I'm starting from okay 2 to 9, ठीक है, okay, thank you. Next chapter 15, chapter 15, thank you, I got the 15, 270 to 96, 270 to 96. Chapter 17, chapter 17 important है। चैप्टर 18 में 335 से 336 तक, 335 से 336 तक, आई मीन दोनों सेक्शंस। चैप्टर 19 में 351 टू 356, 351 एंड 356। चैप्टर 20 में 358। चलो, now let's come to previous year question solving. So before going to the previous year paper solution, आपको दो तीन चीज बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये याद रखना है कि आपको स्कोर 100 नहीं करना है। आपको स्कोर आप बना के रखो कि मेरे को 60% तो शॉर्ट सही आंसर देना है। ठीक है, 60%, वैसे क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 है, आपको आपको शॉर्ट रखना है, 60 to 70% आप आंसर करेक्टली दे पाओ। पहला चीज। दूसरा चीज, आप एक क्वेश्चन पे कभी भी टाइम मत वेस्ट करना। आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। अब अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ, और अगर आपको उसमें ये समझ में आ गया कि कौन से बैराक में ढूंढना है, तो साइड में उस बैराक का नाम जरूर मेंशन कर दीजिए कि सीआरपीसी का क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, या आईपीसी का बीएनएस का है जो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई हैव द बैराक बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड। So in case you are having time, you can later go and then correct that question for from the particular barrack। दूसरा, आपको अटेम्प्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज ये बताना चाह रही हूँ कि चार टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके एआईबी के एग्जाम में। Do you people have previous year question papers in hand, or do you want me to forward previous? I have few previous year question papers. आप लोगों के पास previous year question papers हैं या do you want me to forward those previous year question papers? आप ये क्या दिखा रहे हो सर, एस कुमार सर? अब मेरे को आप कुछ शीट दिखा रहे हो, आई एम नॉट एबल टू। अच्छा, यू हैव इट, यू आर शोइंग, ओके फाइन, ओके, जस्ट अ सेकेंड। इज माई पीपीटी विजिबल? आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल वन थिंग कि आपके जो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं ना, ऐसे चार टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके। सबसे पहला इजी एंड सबसे ज्यादा कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आता है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, सेक्शन नंबर दिया होता है, वो कहाँ है क्या है ऐसे करके सिंपल। ये क्या होता है, आप इंडेक्स रीड करते हो तो इंडेक्स से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने ही नहीं है, कुछ भी हो जाए आप इंडेक्स से निकाल के ही रहना। ठीक है, डायरेक्ट सेक्शन नंबर बैराक से निकाल के करने वाले क्वेश्चंस। दूसरा है आपका सेक्शन के टेक्स्ट को यूज करना है, मतलब कुछ ग्रीवियस हर्ट का डेफिनेशन में क्या ये कौन से पॉइंट्स हैं या कौन से पॉइंट्स नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेक्शन में जाना पड़ेगा। इंडेक्स से नहीं बात बनेगी इसमें, ठीक है। जो सेक्शन जो आंसर डायरेक्टली सेक्शन नंबर से हो जाएगा वो इंडेक्स से सॉल्व कर लेना। जो नहीं, डोंट गो इनटू द सेक्शन अनटिल अनलेस आपको सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप इंडेक्स से ही सॉल्व करो, क्योंकि सेक्शन के अंदर जाके ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है।
कोशिश करो आप इंडेक्स से ही सॉल्व करो। इंडेक्स से सॉल्व नहीं होता तो आपको जाना है सेकंड कैटेगरी में, दैट इज सेक्शन के अंदर जाके सेक्शन का डिटेल रीड करके सॉल्व करना। उसके बाद है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन मान लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपको एक थियोरेटिकल एक थ्योरी जैसे दे के उस पे क्वेश्चन बेस करना। इसमें आपको सेक्शन के बारे में पता होना जरूरी होता है, एंड कुछ कुछ रिलेटेड कंसेप्ट जैसे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जो केस लॉज हो गए, या अमेंडमेंट के जो केस लॉज हो गए। अमेंडमेंट्स कौन जो कोई अमेंडमेंट का नंबर देने के बाद पूछ लिया कि इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया है, इसका भी सॉल्व करने का तरीका मैं अभी बताऊंगी जब क्वेश्चन पेपर आएगा। और ऐसे कोई क्वेश्चन हो गया तो वो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन देख के प्लीज मत डरना। इलस्ट्रेशन में से आप एक कीवर्ड निकाल के अगर आप सेक्शन में जाते हो तो आपको बहुत क्लियरली आपको वहां से आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। वो इलस्ट्रेशन अपने आप से नहीं देते हैं, जो आपका बैर एक्ट में है वहीं से आता है इलस्ट्रेशन। तो डू नॉट लीव इलस्ट्रेशन क्वेश्चन ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इजी टू अटेम्प्ट। ओके। सो अभी मैंने एक कोई खोला हुआ है तो वही खोल देती हूँ। प्रीवियस ईयर करते हैं अब। ये है AIB 19 का क्वेश्चन पेपर है, सेट 1, सेट ए। ठीक है। विल डू दिस टुगेदर, विल डू दिस टुगेदर। हम क्या करेंगे, हम आई गिव यू 10 सेकेंड्स। आप पहले सॉल्व कर यू आई होप यू पीपल आर सिटिंग विथ योर बैरक्स एंड कंपाइलेशन ऑफ बैरक्स। जो बैरक्स से है वो आप तुरंत सॉल्व करना, और जो नहीं है वो हम मिलके एक बार यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बेस्ड कोई केस लॉ बेस्ड अगर है तो। अभी जिसके पास जो बैरक लेके नहीं बैठा, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, काइंडली बैरक लेके आ जाइए अपना। If anyone of you are not having your Berak right now, kindly bring your Berak. Okay, the question papers that I am having, I'll forward that also. Okay, fine. Okay, I have brought in some more things. Just tell me one thing, अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट को अगर मैं चेंज करती हूँ तो क्या आप सारे फाइल्स देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? अ, अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज ही नहीं कर पा रही। Let me just show you some things. आप लोगों ने जो बोला ना उसके हिसाब से कंटेंट ओनली, बैकग्राउंड ओनली, साइड बाय साइड। मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Can you just tell me how I can share my entire screen? Okay, I've got it. So that I don't have to stop again and again. Now my entire screen would be visible. But even if I change my files, right, ma'am? ओके, देर आर सर्टेन थिंग्स 19 सॉल्व करने से पहले एक बार दिखाना चाह रही हूँ मैं। ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ये दिख रहा है आपको, मनुपात्रा का एक कंपाइलेशन है। ये कुछ केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट। आर यू एबल टू सी इट? मिहिर, आई कैन सी यू, कैन यू जस्ट डू दिस इफ यू कैन सी? दिख रहा है आप लोगों को ये ओके फाइन। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो ये क्या है, कंपाइलेशन है, आप लोगों ने मांगा था ना ये। केस लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सबसे मोस्ट फंडामेंटल या लैंडमार्क बोल लीजिए, वो केस लॉज के कंपाइलेशन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये पढ़ने में भी मजा आएगा। इन्होंने फोटो वगैरह यूज करके इसको बनाया हुआ है। इसमें 50 केस लॉज है। ये तो ये करके जाओगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू पीपल। एंड एक कल जो मैंने टॉर्च करवाया था उसमें few of you was having certain difficulty, तो ये टॉर्च का जो मेरा उसमें जो बस इसमें खाली इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगे, एंड हेडिंग्स के अंदर जो जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे। ठीक है, तो जिसका जो मिस आउट हो गया वो टॉर्ट लिखते टाइम में, जैसे हमने कल थोड़ा सा एलैबोरेटली किया था, ये उसका कंसाइंस फॉर्म है टॉर्ट का। आई होप ये शिफ्ट हो रहा है स्क्रीन। हाँ, इसके अलावा मैं 3 चीज आपको भेजूंगी। ये है कंपैरिजन चार्ट। अगर आपने नया बैरक लिया है तो इसमें होगा, अगर नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट बेशक ले जाना।
ठीक है, ये नोट्स में नहीं माना जाएगा, ये दीज वुड बी अलाउड। ठीक है, ये कंपैरिजन है आपका बीएनएस, बीएनएस और बाकी ये बीएनएस एंड बीएनएसएस का साथ है, सीआरपीसी का कंपैरिजन है, सिमिलरली बाकी दोनों के भी हैं ऐसे ही। आई होप यू आर एबल टू सी, ये एविडेंस एक्ट वाले का है। एंड ऐसे ही हमारे मैंने ये ढूंढ के निकाला है एक आईपीसी वाले के साथ का कंपैरिजन। ठीक है, ये कंपैरिजन चार्ट आप अपने साथ रखना, अगर बैराक में है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये कंपैरिजन चार्ट रखना। ये लैंडमार्क जजमेंट, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, जुडिशरी, उस उनके लॉ कमीशन के वेबसाइट से ही निकाला हुआ कंटेंट है ये भी थोड़ा कंटेंट वाइज केस लॉज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉस पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने ढूंढ के निकाला हुआ है आप लोगों के लिए। और क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वुड बी फॉरवर्डिंग। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट द solutions. Okay, I think the screen is visible. Yes, ma'am. Let's start solving it. I'll count 10 in my mind and जितना आप सॉल्व कर पाओ उतना सॉल्व कर लेना, वरना मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी। ठीक है, आप अपना फोन नहीं यूज करोगे, आप बैराक्ट यूज कर सकते हो, अगर आपको बाकी आपका जितना जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द केस वाज रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी अंडर फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 का ये केस लॉ है। अगर आप आर्टिकल 12 में जब आप वो रिवाइज करोगे, केस लॉज रिवाइज करोगे, बहुत ही एक ही बार में आपको इसका आंसर आ जाएगा। आर्टिकल 12 का केस लॉ है ये। अब आपको क्या करना है, सिंस आप अगर आपको नहीं पता, ये आर्टिकल 12 का केस लॉ है। ठीक है, डोंट गेट स्टक हियर, आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तुक्का मार के ही जा सकते हो अगर आपको नहीं आता हो तो। वैसे इसका आंसर है अजय हसिया। ठीक है, अजय हसिया। सेकेंड केस ऑल्सो बहुत ही फेमस केस है ये। कैन द फंडामेंटल राइट्स बी वेव्ड? फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी वेव्ड। आप चाहो भी ना तो आपका राइट टू लाइफ आप नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं चाहिए राइट टू लाइफ। आप नहीं बोल सकते मेरे को राइट टू स्पीच नहीं चाहिए। आप बोल ही नहीं सकते ऐसा, ये आपका फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते हो। इसका केस है बशेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर। आप प्रीवियस से सॉल्व करना, तो आपको क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन जो है आता है टिप्स में हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे, by which constitutional amendment was clause 4b inserted in article 16? Quickly open article 16, quickly constitution में article 16 open करिए and clause 4b देखो, 4b के फुटनोट में देखो। 10 सेकंड दूंगी मैं आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने बैरक्स कैसे रखने हैं। आपको फुटनोट में इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जिसको मिल रहा है उनको ड्रॉप द आंसर इन चैट बॉक्स। और ये आपने बैरक से ही ढूंढ के निकाला, ऐसे ही ढूंढना है आपको सारे आंसर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी निकालो ढूंढ के। फुटनोट से निकालना आता है ना, जिसको नहीं आता मैं उनको बता दूं, जैसे आपका ये बैराक्ट अगर है, बैराक्ट है, अब आर्टिकल 16 सपोजिली अगर ये आर्टिकल 16 है तो यहाँ 16 को ना एक नंबर मार्क करके नीचे लिखा होगा अमेंडमेंट्स आर पार्ट ऑफ योर बैराक्ट, तो होगा ही, ये कमेंट्स में नहीं आता। इफ योर आंसर इज 81 जो आपने ढूंढ के निकाला है, अगर आपका आंसर 81 है तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये सॉल्व करने का दो तरीका है, या फिर आपको डायरेक्टली पता हो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताया था ना, अलग से भी आपको लर्न करना है अमेंडमेंट्स एंड इमरजेंसी। नहीं आता तो आपको डरना नहीं है, आपके पास बैर एक्ट है। आपको क्या करना है, आपको ये चारों जो सेक्शंस बोले, ये तीनों सेक्शंस जो बोले हैं, इसको इंडिविजुअली खोलना है। फर्स्ट आपको यू हैव टू ओपन 239A एंड उसमें देखना है कि क्या 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से रिलेटेड कुछ भी बोला है। रीड नहीं करने बैठना, बस आपको ये देखना है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मेंशन किया है क्या 239A में। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको बस ये देखना है क्या मेंशन्ड है 239A के बारे में कुछ।
अगर मेंशन्ड है तो फिर आपको रीड करके देखना है क्या यही चीज मेंशन्ड है। अगर ऐसा है तो अगले पे आना है, 338A, 334A। अब इन्हीं प्रोविजंस में आपका ऑप्शन नंबर 4 भी है। ट्राई टू सॉल्व, ताकि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यही पता चलेगा। इसका आंसर अगर मिल गया तो आप बताइए क्या है आपके हिसाब से आंसर। मैं आई सर्च फॉर अमेंडमेंट का, अगर मुझे कोई अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ऊपर भी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पे ना अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है नेट में तो वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आई सर्च। इसका आंसर है ऑल दी अबाउ। इसका आंसर है ऑल दी अबाउ। वैसे मैं आपको बहुत कम टाइम दे रही हूँ, बट आप अपना ऐसे टारगेट रखना कि आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। और अगर आपको लगता है कि 30 मिनट्स के अंदर अगर आपने 30 क्वेश्चन नहीं किया तो फोकस और बढ़ा के स्पीड बढ़ाना है। वैसे यू हैव मोर देन 1 मिनट। ठीक है, रिवीजन के लिए भी टाइम बचना चाहिए, इसलिए मैं आपको 1 मिनट का टारगेट दे रही हूँ। फोर्थ का आंसर है ऑल दी अबाउ। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर हाउसिंग एक्ट अभी मेरे पास नहीं है, तो लेट्स स्किप दैट क्वेश्चन। ये करिए 6। The reports of Controller and Auditor General of India relating to the accounts of a state shall be submitted to the dash। अब आप मुझे, अभी अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से ही हमें ढूंढ के निकालना है। आप हेडिंग्स जल्दी रीड करके देखिए। वेयर इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिंस ये ऑफ इंडिया है, आपको पता चलना चाहिए कि ये सेंटर के बारे में हो रहा है, स्टेट के बारे में नहीं हो रहा। तो ये जब डीपीएसपी भी खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी खत्म होने के बाद जहां पे हमारे यूनियंस स्टार्ट होगा, यूनियन के तीन उनमें से किसी एक में होगा ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एबल टू अंडरस्टैंड कैसे ढूंढना है आपको। आपको सबसे पहले ढूंढना है ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड उनको ढूंढने के बाद आपको ये देखना है वो किन को सबमिट करते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी। Next is which of the following article of Constitution declares Supreme Court shall be a court of record। तो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट वाले प्रोविजंस में आ जाओ। What is 3? अच्छा, you are giving the answer। सुप्रीम कोर्ट पे आ जाओ और जल्दी से देखो। If your answer is 129, you are given correct answer।
अगर आपका 129 आंसर आया है तो आपका ठीक है। Which of the article deals with power, privilege and immunity of parliament and its member? अब इसका करने का दो अप्रोच है, या फिर आपको आइडिया हो आर्टिकल कहाँ है, नहीं तो आप क्विकली 102 से स्टार्ट करोगे। क्विकली 102 से स्टार्ट करो और देखो। क्विकली 102 से स्टार्ट करो। 102 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। 103 में डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफाइंग मेंबर। 105 में power, privilege, etc. of House of Parliament and members and committee thereof. 107 में provision as to introduction of passing a bill. 108 में joint sitting. तो क्लियरली क्या आंसर है इसका? सेक्शन मत रीड करने बैठना, बस हेडिंग देखना। इफ योर आंसर इज 105, एब्सोल्युटली करेक्ट है। Which constitutional amendment inserted provision related to GST? Which constitutional amendment inserted provisions related to GST? क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये तो अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता हो। आप एक बार एक काम करिए जिससे इसका आंसर है 101। इसका आंसर है 101। आई वाज जस्ट सीइंग इफ आई हैव नोट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, मैं आपको भेज देती। आई सर्च इन माय नोट्स इफ आई एम हैविंग अमेंडमेंट्स के नोट्स, तो मैं भेज दूंगी, क्योंकि अमेंडमेंट्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 101। नेक्स्ट, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जल्दी से आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जाइए एंड इम्पीचमेंट प्रोसीजर पे देखिए। वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इम्पीचमेंट जो है, जल्दी बताइए, प्रेसिडेंट के सेक्शंस में जाना है। मैंने आपको हिंट दे दिया क्या करना है, आपको प्रेसिडेंट के सेक्शंस में जाना है। प्रेसिडेंट के सेक्शन आप कैसे ढूंढोगे? यूनियन के पार्ट में होगा, तो प्रेसिडेंट किस में आते हैं? यूनियन के एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यूनियन के एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव खोलते ही आपको नीचे दिख जाएगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या टेन्योर होता है, कब निकाल सकते हैं आप इसको इनको। अगर somebody has done question number 9, you are able to see still question number 12, आप निकाल लो अगले क्वेश्चन के आंसर्स। which constitutional amendment inserted, sorry, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर क्या है 10th का? आई कैन सी ओनली सीमा आंसरिंग। आई होप बाकियों को भी आंसर मिल रहा है। सीमा, गुड, यू आर राइट।
I'll just check once, Mihir, regarding the audit report that you have said. Yes, right. Your answer is right. इसका आंसर है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कौन इनिशिएट करेगा प्रोसीजर इम्पीचमेंट का? नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसिडर्स फोर्स टू बी अ क्रिमिनल फोर्स. तो आपको बेसिकली किसके डेफिनेशन में जाना है? क्रिमिनल फोर्स के डेफिनेशन में जाना है. सॉरी, बंद हो गया. लेट मी जस्ट ओपन इट अगेन. जल्दी से बताइए, फोर्स कब क्रिमिनल फोर्स होगा? फोर्स कब क्रिमिनल फोर्स होगा? ए बी सी डी, क्या आंसर है? इफ योर आंसर इज सी, योर आंसर इज करेक्ट. आपने खुद निकाला क्रिमिनल फोर्स से. क्रिमिनल फोर्स आपको ये पता होना चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्रिमिनल फोर्स कैसा है. ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होता है या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है. तो तुरंत आप ह्यूमन बॉडी में जाओगे और निकाल लोगे क्रिमिनल फोर्स. दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. नेक्स्ट, BNS 2023. What is the maximum fine for making or using a document under 128 182(1)? क्विकली कम BNS के 182(1) में. 182(1) में आ जाइए. 182(1) में. अब इसमें आपको बिल्कुल अंदर से रीड नहीं करना है. सेक्शन पे जाना है और बताना है मेरे को कितना है यहाँ पे. वन एटी टू वन. आई ऑल्सो ओपन, मेरे को देखने दो कितने टाइम पे. इसलिए आई एम हैविंग ओल्डर एक्ट्स ओनली. 182 पे गए हम पहले. 182(1) ऑफ BNS है ना. BNS का क्वेश्चन था ना ये. भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता. मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग यूजिंग. अच्छा, पनिशमेंट फाइन 182. तो ये आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसी और एक्ट पे. तो आपको उस एक्ट में जाना है टू फाइंड आउट दी ऑफेंस. क्या है इसका आंसर? कौन से सेक्शन से बता रहे हो आप? कौन से सेक्शन से बता रहे हो आप?
I'm not able to see your. So the answer is 300. अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बोल दे तो आपको पता है, आपको प्रॉपर्टी वाले प्रोविजंस में जाने हैं, बीएनएस के प्रॉपर्टी वाले प्रोविजन में जाने हैं। तो पहले प्रॉपर्टी वाला चैप्टर खोल लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन पढ़िए। एंड जल्दी से आंसर बताइए, प्लीज टेल मी द आंसर। मिल गया इसका आंसर? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू ओपन माई बीएनएस, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है एंड आई एम नॉट एबल टू ओपन इट, इसलिए मैं इसका आंसर शॉर्ट नहीं बता पा रही आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बीएनएस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इन विच ऑफ द ऑफेंस कमिटेड और अटेम्प्टिंग टू बी कमिटेड। आपको रॉबरी के पनिशमेंट पे जाना है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट के पनिशमेंट में जाना है, थेफ्ट मिस्चीफ एंड हाउस ट्रेसपास के पनिशमेंट में जाना है। उनके डेफिनेशन में आपको नहीं मिलेगा, जैसे ही डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है वहां पे उनके पनिशमेंट आएंगे। Most of you are answering it as B. So those who are, I'm not sure about the answer. I'm not actually able to open my Bear Act. ये क्या ओपन हो गया? Allow participants to unmute. No. हम्म, अगले पे आ जाते हैं। Rajesh, in a heated argument with Sunil, strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm. फ्रैक्चर्स का क्या मतलब है? हर्ट है कि ग्रीवियस हर्ट है ये? एंड ही इज अनेबल टू यूज इट फॉर सेवरल वीक्स। 20 डेज से ऊपर ग्रीवियस हर्ट,
The medical report confirms that the fracture amount to grievous hurt. Which of the following offences has Rajesh committed? Simple hurt, voluntarily causing grievous hurt, voluntarily causing hurt under section 324, attempt to commit culpable homicide. क्या है इसका आंसर? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर बताया है क्या हुआ है। इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ही गलत होगा आंसर। ओके, सो हियर इफ योर आंसर इज 2, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। देखो क्वेश्चन में ही बोला है, द मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स द फ्रैक्चर अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट। और क्या लोगे आप? क्वेश्चन में ही बोला है कि ग्रीवियस हर्ट है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि हर्ट है तभी तो ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो सिंपल हर्ट भी हो सकता था आंसर में। जब आपका ऑफेंस बड़ा हो जाता है तो पनिशमेंट बड़े वाले ऑफेंस का मिलता है। हर्ट से ग्रीवियस हर्ट आ गया तो ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट मिलेगा, हर्ट का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, राइट, गुड, सम पीपल आर आंसरिंग इट राइट, गुड। नेक्स्ट, ये 15 और कर लीजिए, फिर मेरे पास ना एक अमेंडमेंट का छोटा सा, मैं 2-3 अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट नंबर, वो मैं आपको मार्क कराना चाह रही थी। नेक्स्ट, अमित इंटेंटिंग टू कॉज द डेथ। अब इंटेंशन डेथ का कॉज, इंटेंशन आ गया डेथ कॉज कराने का। अटैक्स हिम विद अ नाइफ। विजय सस्टेन्स severe injuries and dies on the spot. The investigation reveals that Amit acted with a knowledge that his action were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation or intent to murder Vijay. अब बताइए, which of the following offense has Amit committed? अमित को विजय को मारना था, उसके लिए अमित नाइफ लेके जाता है एंड विजय को सेवरल इंजरीज कॉज करता है और वो विजय ऑन द स्पॉट मर जाता है। क्या होगा इसमें? दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाना नहीं, गलत हो जाएगा। इंटेंशन टू कॉज sustains severe injury and dies on the spot. Investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his actions were likely to cause death. आपका अगर कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन देखो और मर्डर का डेफिनेशन देखो, कल्पेबल होमिसाइड के डेफिनेशन में है लाइकली टू कॉज डेथ। अब इसका आंसर कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता इसका आंसर, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बेशक इसको छोड़ के अगले में चले जाना। आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डेफिनेशंस निकालोगे, ठीक है, उसमें आप देखोगे कल्पेबल होमिसाइड में 3-4 चीजें चाहिए, मर्डर में उन्हीं 3-4 चीजों के साथ एक और एलिमेंट चाहिए। ठीक है, क्या होता है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड में लाइकली टू कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबल केसेस आ जाता है तो वो डेथ होता है। बट अगर ये है कि खाली लाइकली टू कॉज डेथ है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। डिफरेंस समझ में आया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट लाइकली टू कॉज डेथ तक ही है अगर, तो कल्पेबल होमिसाइड। लाइकली टू कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबल, तो वो क्या होगा, इन ऑल प्रोबेबल केसेस, तो वो मर्डर हो जाएगा। इन्होंने क्लियरली बोला, हाउएवर देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्री मेडिटेशन और इंटेंट टू मर्डर विजय। तो द क्वेश्चन इज, क्या इंटेंशन जरूरी है? इंटेंशन का एविडेंस होना जरूरी है?
इंटेंशन का होना जरूरी है क्योंकि आपका एक्ट क्या बोलता है, मेंसरिया रिक्वायर करता है। क्या रिक्वायर करता है? मेंसरिया मेंटल एलिमेंट, मेंसरिया मेंटल एलिमेंट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये इसका आंसर होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर 304। Amit's action shows the knowledge of likelihood of causing death, but lacks premeditation or clear intent to murder, which is required in 302. लैक ऑफ इंटेंट बताया ना इन्होंने, और इंटेंशन आपका क्रिमिनल केस में मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये 304 हुआ। आप प्रीवियस से क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक थोड़ा सा हेडिंग लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखवाना था मेरे को आप लोगों को। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। यस, द फर्स्ट लाइन इज स्टेटिंग इट, बट एविडेंस नहीं ला पाए ना आप उसका। जस्ट बोलने से नहीं होगा ना, क्लियरली वो उन्होंने लाइन अगर मेंशन नहीं किया होता, ये एब्सोल्युटली, अगर ये लास्ट लाइन मेंशन नहीं किया होता तो ये डेफिनेटली मर्डर था, क्योंकि द लाइन स्टार्ट्स विद विजय हैविंग इंटेंट टू मर्डर, है ना। पॉइंट आपने सही बोला, जस्ट बिकॉज उस चीज का वो एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस। चलो, अब दो तीन नंबर्स, मैं बस नंबर्स लिखवा देती हूँ, जो कि आपको ये अमेंडमेंट्स मिस करने ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी हालत में। सबसे पहला है 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 77th अमेंडमेंट, 81, 85, 81, 85, 100, 100, 100 के बाद तो सारे इंपॉर्टेंट है, 100 से 106 तक आ गया है। 100 से 106 तक का मैं एक एक वर्ड लिखवा देती हूँ आप लोगों को। 100 में आया है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स विथ बांग्लादेश, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स विथ बांग्लादेश। 101 का एक वर्ड लिखिए, 101 जीएसटी, 101 जीएसटी। 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और आर्टिकल नंबर भी यही मेंशन कर लीजिए, 338 बी, 342 ए। कैप्स में लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना ये 342 ए। नेक्स्ट इज 103rd अमेंडमेंट, 2019 में आया है 103rd। चेंजेस इन आर्टिकल 15 एंड 16, changes in article 15 and 16। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आया ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
Anglo-Indian removed. Anglo-Indians removed from reservation. From reservation. Plus extended the reservation for SC/ST for another 10 years. ये जो रिजर्वेशन के प्रोविजन है ना, जब आए थे तो वो टेम्पररी आए थे, 10 साल करके। तो ये अब हम 10 साल, हर 10 साल में उसको रिन्यू करते रहते हैं। ये 104th अमेंडमेंट में हमने उसको रिन्यू करा फॉर अनदर 10 years। 2030 तक के लिए अभी हमने सेट कर लिया। अगला 105th अमेंडमेंट आया है 2021 में। 105th अमेंडमेंट आया है 2021 में। Restore power of state government. Restore power of state government. Restore power of state government to identify SEBC, socially economically backward classes, SEBC। मतलब स्टेट के पास अभी अथॉरिटी है बेसिकली कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। 106th अमेंडमेंट के पॉइंट्स अभी मेरे पास नहीं है, तो प्लीज आप अपने आप से एक बार ढूंढ लीजिएगा। 106th अमेंडमेंट आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। चलो, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। जो जितने भी नोट्स मैंने आपको दिखाए हैं एंड जितना मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ आज मैं मेल कर दूंगी आफ्टर क्लास। एंड बाकी आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे बताए हैं ना, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है सेक्शन लैंग्वेज को रीड करके। और जो जो जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, काइंडली गो थ्रू दोज सेक्शन नंबर्स ओनली एंड डोंट गो इन डेप्थ रीडिंग, जस्ट रीड द हेडिंग्स, ताकि आपको ये पता चले। जैसे बीएनएस में हो गया, आपको आईपीसी में पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के सेक्शंस कहाँ पे है, मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस कहाँ पे है, बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस कहाँ पे है। अगर ये पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन को देख के उस बैराक को यूज करके आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है। Now, ma'am, I think we can take up the queries, and if anyone has anything to ask, you may proceed. Ma'am, is there any queries in the chat box that I have not addressed? Are you people able to unmute yourself? Okay, okay. Okay, fine. Uh, I don't think so. I have the authority. Let me just see if I can. यस मैम, जस्ट क्वेश्चन। Okay. मैडम, अभी लास्ट ईयर पेपर में जो हम कर रहे थे, Mm-hmm. बाकी तो मेरे सारे क्वेश्चन निकल गए देख Mm-hmm. के सारे, लेकिन उसमें एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी किसको सबमिट करनी है। Someone else वो also told me this फोर्थ that. या फिफ्थ क्वेश्चन होगा। हाँ, Mm-hmm. वो मैडम कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा नहीं मेरे को, कहाँ दिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो मेरे ख्याल से रूल्स में है सर। वो शायद रूल्स रूल्स में है। हाँ जी। वो शायद Mihir, I think you were able to answer it. Can you just tell from where you got the answer? Which क्योंकि provision? इसमें कहीं भी बेयर अमाउंट बेयर आउट बेयर एक्ट में कहीं दिखा नहीं मेरे को इसमें अच्छा, नो रिटर्न। प्रॉब्लम सर। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस, आप उसको छोड़ के अगला आंसर कर दो। मतलब क्योंकि टेंशन अभी नहीं मैंने है। एक आंसर देखा था, उसमें लिखा था इट शुड बी सबमिटेड टू द गवर्नर। हम्म। आपने बताया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, हाँ तो व्हाट इज द करेक्ट, आइदर इट टू गवर्नर और टू द पब्लिक अकाउंट सर, एक्चुअली पता है अकाउंटेंट? क्या, मैंने जो नोट्स बनाए हैं मेरे उसके हिसाब से पब्लिक क्योंकि ये इट्स इन स्टेट की तरह, 1511 अब स्टेट में स्टेट है कि सेंट्रल है। स्टेट सेंटर। की होगी तो स्टेट की, तो फिर वो हो सकता है कि इट में बी सबमिटेड टू द गवर्नर। कैन यू यस confirm the answer either यस to the यस यस governor? यस। यस, लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर। Yes.
वैसे तो आएगा नहीं, लास्ट ईयर आया तो इस साल नहीं आएगा, लेकिन फिर जस्ट फॉर सर 151 प्लस जस्ट रीड 151 months. 151 ऑडिट रिपोर्ट्स. ऑडिट रिपोर्ट, यस, ठीक मिल गया मैम, यस आई विल चेक द आंसर। इसमें आंसर है. हाँ जस्ट आया, थैंक मेरे यू. को नहीं मिला था उस समय एट द टाइम ऑफ। एक बार देख लीजिए ये. आई एम चेकिंग द आंसर कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एनीथिंग एल्स? 1511 में प्रेसिडेंट को बोला है एंड 1512 में गवर्नर को बताया है. आप. मैडम दिस इज द आंसर, गवर्नर। अंडरस्टूड. इसमें फर्स्ट में तो प्रेसिडेंट को इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और राइट. इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट हैज टू बी सबमिटेड टू द गवर्नर। गवर्नर. राइट. एम आई राइट? राइट. ओके, एनीथिंग एल्स? यू थैंक यू कैन. मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच. बस अभी आप मेरे को सबमिट कर दीजिएगा जो भी आपके पास हाँ नोट्स हाँ. वगैरह हैं, I'll so do that that. I'll do that today we can itself. I'll we can use mail the same to them. in the And coming all the week. very best. I hope, really hope you are able to Yes, get 100% we informed. will positively do it. We will You, surely. everyone will be able to crack it. Do not worry. आपको I, सबसे I पहले am काम I am रहना है. sure I am हाँ. sure about myself. नो नो ऐसे नहीं बोलना सर. हम सब बहुत अच्छा. नहीं, we all, oh, जब I am particularly talking about me, then I can assure you with your guidance I will be able to clear the AIB examination थैंक यू सो मच सर. दैट इज 20. एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिए जो. थैंक यू सो मच सर. आप नहीं म्यूट कर पा रहे? अच्छा. ओके. अब कर. ट्राई. मैम होस्ट. मैम डू आर यू देयर? Yes. Thank you, madam. मैम दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट देमसेल्फ. एक बार देख लीजिए. हो गया madam, हो गया. हाँ जी सर Hello. पूछिए. Yes. यस यू आर Madam, ऑडिबल. what was the answer, madam, for this this governor, president? सर एक बार 151 पढ़ लीजिएगा. 151. अभी नहीं सर. यू टेक योर टाइम एंड रीड द I क्वेश्चन. got it. राइट. जस्ट आप कहीं पे लिख लीजिए 151. Okay. Madam, also you told me, no, that you will guide us how to what to say, find out the answers, articles, sections. सर देयर इज ओनली वन मेथड जो मैंने आपको बताया. 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. आपको क्वेश्चन की कैटेगरीज आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो इंडेक्स से फाइंड आउट करने वाला है या सेक्शन से फाइंड आउट करने वाला है, क्या वो इलस्ट्रेशन से डील करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर क्वेश्चंस है, जैसे अमेंडमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको जैसे प्रोविजन दिए हुए हैं, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस किया था ना 106 अमेंडमेंट हमने कैसे ढूंढा. यू गो टू दैट पर्टिकुलर नंबर्स दैट इज गिवन एंड वहां से हम नीचे फुटनोट से निकाल के उसको आइडेंटिफाई करेंगे. And also, will you please share us last 3 questions with answers? Okay, actually I have a document with answers only, so I'll forward that only. Please, madam, please. Thank you so much. Thank you so much. No problem. Anything else? Anything else? I hope my session was productive for everybody. And in case you have any suggestions or any recommendations, you can you're free. I mean, you can drop your mails या कोई query आती है बाद में तो आप मेरे को मेल फॉरवर्ड कर सकते हो. Is there any more question left? Thank you so much. No? Okay, then all the very best. आप सब बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना एंड अच्छे एडवोकेट्स बनना. ठीक है. ओके. I think, ma'am, there is no more question left, so we can wind up today's session. श्योर. कोई चैट बॉक्स में तो नहीं है. Thank you so much, ma'am, for taking all the 3 days lecture. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Good night. Thank you, ma'am. Thank you.